Hello students, how are you? I hope you are great and your studies are also great. So today I am here with further discussion on this particular topic, that is mechanical properties of fluids. You have remember, I hope, that in last lecture we have completely discussed about fluids. We saw the definition of fluid, also we learned about classification of fluids, also we understood some properties of fluids, and we saw what is real fluid and what is ideal fluid. So that was complete discussion about the fluids only. Today we are going to start with some mechanical properties. Students, the branch of physics which deals with the study of fluids, that is called as fluid mechanics. We study the fluid, the effect of fluid, the effect of force on fluid, the flow of fluid, the drag force. All these comes under a special branch of physics, and that is called as fluid mechanics. It is very interesting. So to understand it properly, it is divided into two parts. One part we say it as hydrostatic, one part we say it as hydrostatics, and another part it is called as hydrodynamics. What does hydrostatics mean? Hydrostatic means study of fluids at rest. Whenever you are studying the fluids at rest, you are studying its properties at rest, we say it as hydrostatics. Statics means at rest, and study of fluids in motion, this is called as hydrodynamics. That means whenever the fluid flows through some continuum or through some pipeline or anywhere, when we are studying the drag forces on it, we are studying the viscosity on it, we are applying the Bernoulli's equation, we are finding different parameters related to the study of fluids in motion. That branch is called as hydrodynamics, and combinedly hydrostatics and hydrodynamics we call it as fluid mechanics. Okay, so in today's lecture we are starting with hydrostatics, and after that we will be completing hydrodynamics wala part. Both are there in your syllabus. Previously this chapter was not there in your textbook, also it was not there in your syllabus of 11th 12th as well. It was directly used to come at engineering level. Basically this part, hydrodynamics, hydrostatics, was there in 11th standard textbook, but now they have given you in 12th standard. Okay, so we will be studying that. So let's start with hydrostatics today. Just now I have written the definition in front of you. Hydrostatics हम उसे कहेंगे, the definition of hydrostatics किसको बोलेंगे? Study of fluids at rest. Okay, so let me put up the topic. We are starting with hydrostatics. Okay, now the first thing which you have to learn in this particular era is pressure, which is very important. You have already heard about this term pressure previously in 11th standard or in lower standards 10th 9th. You have already heard about pressure, so let's discuss that. फ्लूइड का प्रेशर होता क्या है? देखिए, प्रेशर इज नथिंग बट a normal force exerted by
the fluid at rest, the normal force exerted by the fluid at rest per unit area of contact, per unit area of contact is called as pressure. Very simple definition. The normal force exerted by the fluid at rest, mark this, fluid at rest. We are studying hydrostatics. We will be only talking about right now fluid at rest, not in motion. यानी हम जिसकी बात करेंगे लिक्विड की, गैस की, वो हम उसको रेस्ट में स्टडी करेंगे, वो मोशन में नहीं होगा. सो फ्लूइड इज एट रेस्ट एंड इट इज एक्सर्टिंग नॉर्मल फोर्स. कहां पे लगा रहा है? पर यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर. इसको अच्छे से समझने के लिए और एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे समझ लेते हैं. मान लेते हैं कि हियर आई एम हैविंग अ वेसल लाइक दिस एंड देयर इज अ फ्लूइड filled inside. Let us say it is some liquid. Now let us consider a unit area over here. यहां पे हम लोग एक एरिया ले लेते हैं, ये वाला. अब ये फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है. ये फ्लूइड इस एरिया पर फोर्स अप्लाई करेगा. करेक्ट. कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू दिस एरिया. The fluid which is in contact with this will be applying a normal force F on this particular area A, and this force per unit area is called as pressure. Correct? Now how we can write in mathematics? We will be writing pressure by a liquid or fluid is equal to normal force applied to unit area. This is the very important formula for pressure. Pressure is equal to force divided by area. It is a scalar quantity. Pressure is equal to force divided by area. If you write symbolically, you can write P is equal to F by A. P is equal to F by A. So are you getting this? Now let us talk about its unit. फॉर्मूला आपके सामने आ गया. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. पी इज इक्वल टू एफ बाई ए. व्हाट अबाउट इट्स यूनिट्स? स्टूडेंट्स, प्रेशर अगर उसके एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, सो इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस यू विल फाइंड मेनी डेफिनेशंस ऑफ प्रेशर इन डिफरेंट बुक्स. वी मेजर द प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वी मेजर इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. We measure in Pascal, we measure in bar, we measure this in torr, also we measure this in mm of Hg. कितने सारे यूनिट्स है? Let me write all units over here. First of all, the unit which we are going to deal with, the unit which is SI unit, let me write that. So SI unit of pressure is, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर. तो इसकी यूनिट बन गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिकली विल बी राइटिंग लाइक दिस, एन पर एम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. प्लीज डोंट फॉरगेट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये यूनिट कौन सी यूनिट है? मार्क दिस, दिस इज एसआई यूनिट. अब इसको आप सीजीएस में भी मेजर कर सकते हो. सीजीएस में यूनिट क्या बन जाएगी? सीजीएस में न्यूटन को हम क्या कहते हैं? डाइन. तो वी कैन राइट लाइक दिस, डाइन. और सीजीएस में मीटर को क्या कहते हैं? सेंटीमीटर. तो हम बोलेंगे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अच्छा गाइस, दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल. भूलना मत, कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा पास्कल. दिस पास्कल इज सेम एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देयर इज नो डिफरेंस. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, याद रहेगा.
अच्छा, पास्कल को हम लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं पी ए, पी सफिक्स ए, स्मॉल ए। दोनों में क्या रिलेशन है, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं है। यू कैन राइट 1 पास्कल इज सेम एज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर की यूनिट हमने देखा 3 यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी का नाम पास्कल है और उसी का नाम डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। आइए हम आपको और यूनिट्स बताते हैं इसकी। इसको हम लोग और मेजर करते हैं। एक यूनिट तो इसकी बार, बार ये भी प्रेशर की यूनिट है। अच्छा, आपको और इसकी यूनिट मिलेगी टॉर, TOR, टॉर। दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। आपको और इसकी यूनिट मिलेगी मिलीमीटर ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। These all are nothing but units of pressure। अब आप बोलेंगे सर एक बार कितने पास्कल होता है, एक टॉर्क कितने पास्कल होता है, या एक mm ऑफ Fg कितने पास्कल होता है। दैट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन। अगर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे उसमें कन्वर्जन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ओके, 1 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg means if you fill that in barometer you get that much amount of mm. Okay, and we find it using rho Hg. Rho is density 13,600, h is height is 1 millimeter, that is 10⁻³ millimeter, and g is acceleration due to gravity, which is 9.81. Okay, so the conversion, if required in further studies of this chapter, I will be telling you, but right now what you have to remember is all about this. Pressure is equal to force by area. It is Newton per meter square, its unit, and Newton per meter square is nothing but Pascal. The CGS unit is dyne per centimeter square. We also don't use this unit CGS. Mainly we will be using this unit, Newton per meter square or Pascal, which are the same. So I hope it is very much clear about pressure. प्रेशर क्या होता है, जब भी फ्लूइड को आप किसी भी कंटेनर में रखते हो तो वो फ्लूइड, उस फ्लूइड के आसपास का जो एरिया है उस पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करता है, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता है। दैट नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट फ्लूइड। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करिए, ये सारा कुछ कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए लेट्स मूव फर्दर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, हेडिंग डालेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट लिक्विड कॉलम इज। जस्ट सी हियर, pressure due to a liquid column. Consider here I am having a vessel and this particular vessel is filled with liquid and this surface shows the free surface of the liquid. याद रखिएगा, ये जो सरफेस जिसको मैंने ब्लू से ड्रॉ किया दैट इज फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का मीनिंग क्या होता है? फ्री सरफेस मीन्स द सरफेस विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। ऊपर तुम्हारा क्या एटमॉस्फेयर है और नीचे क्या है, लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और फ्री सरफेस को हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में इस तरह से दिखाते हैं, वी शो लाइक दिस, अ स्मॉल इन्वर्टेड ट्रायंगल। This denotes that this is free surface. Free surface means here on this particular surface there is atmospheric pressure. It is in contact with the atmosphere. Now let us consider a
अब इसमें पूरे में क्या भरा हुआ है, फुल फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा हुआ है. आई एम नॉट शोइंग दैट. व्हाट आई एम गोइंग टू शो इज अ लिक्विड कॉलम. लिक्विड कॉलम क्या होता है, सुनिए ध्यान से. लेट अस कंसिडर देयर इज एन इमेजिनरी सिलेंडर हियर. दिस सिलेंडर इज एन इमेजिनरी सिलेंडर. इस लिक्विड में ऐसा कोई सिलेंडर हमने फिजिकली डाला हुआ नहीं है. वी आर कंसिडरिंग एन इमेजिनरी सिलेंडर. व्हाई? टू कंसिडर द अमाउंट ऑफ फ्लूइड कंटेन्ड इनसाइड दिस सिलेंडर. Because when you are drawing some cylinder like this, an imaginary cylinder, obviously there will be some fluid over there. Okay, now what our aim is, we want to find that how much amount of pressure will be applied by this cylinder on this bottom part. ये जो सिलेंडर है इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड का कुछ मास होगा, कुछ वेट होगा, और वो अपने वेट के थ्रू नीचे क्या अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा. तो मुझे ये फाइंड करना है कि इतना अमाउंट ऑफ लिक्विड जो इस सिलेंडर के अंदर आ जाए, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रेशर इट इज गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस बॉटम पार्ट. दिस इज द बॉटम ऑफ द सिलेंडर. आई वॉन्ट टू फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड बाय दिस ऑन द बॉटम पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. दिस पर्टिकुलर इमेजिनरी सिलेंडर इज योर लिक्विड कॉलम, एंड दिस सरफेस, फ्री सरफेस, दिस सरफेस इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस. ठीक है. नाउ लेट अस कंसिडर दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द सिलेंडर हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज ए. इसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, लेट अस कंसिडर, h. ठीक है. नाउ सी हियर, हमने अब भी देखा द प्रेशर P विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अब ये देखिए, ये नीचे कितना फोर्स अप्लाई करेगा. सुनिए, जितना इसका वेट होगा उतना वो नीचे प्रेशर अप्लाई करेगा. इसका वेट कितना होगा, वी नो दैट द वेट ऑफ दिस इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. हम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. सो द फोर्स अप्लाइड विल बी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी डिवाइड बाय एरिया. ओके, बट स्टूडेंट, you have already studied a formula, density, formula for density. What is formula? Density is equal to mass divided by volume. From this formula, can I write mass is equal to density and this volume multiplied over here? ठीक है. तो we can write मास इज इक्वल टू, डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, दिस इज सिंबल, इज कॉल्ड एज रो, एंड वॉल्यूम को हम लोग वी से डिनोट करते हैं. यहाँ पे याद रखिएगा, ये वी वेलोसिटी नहीं है, ये वी वॉल्यूम है. नाउ वी आर स्टडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स, नॉट structural mechanics or dynamics. So here it is showing V, it is volume, not velocity. So in place of mass can we put density into volume? मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख सकते हो ना आप, और आपका जो G है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा और नीचे हमारा एरिया आ गया. नाउ दिस V इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, आप बता सकते हो. सपोज देयर इज अ सिलेंडर ओवर हियर, हियर इट इज सिलेंडर, ओके, हियर इट्स एरिया एंड हियर इट्स हाइट इज देयर. हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पढ़ा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. क्या फॉर्मूला पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच. बट यू कैन सी पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया एंड एच इज नथिंग बट हाइट. सो आई कैन राइट वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट. Correct. So in place of this volume, I am going to put rho as it is. वॉल्यूम की जगह मैं रखूंगा एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट
एंड जी एज इट इज कॉपी, और डिनोमिनेटर में एरिया एज इट इज कॉपी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एरिया इंटू हाइट हमने वॉल्यूम की जगह पुट किया है। नाउ यू कैन सी दिस ए एंड दिस ए कैन गेट कैंसल्ड, एंड व्हाट वी गॉट दैट प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज रो मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। So suppose there is a liquid column over there, and this liquid column applies pressure equal to rho density of the liquid, h height of the liquid column, and g is acceleration due to gravity. At earth we assume it as 9.81 meter per second square, constant everywhere. तो आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि सर ये आपने सिलेंडर छोटा लिया था, तो इस छोटे सिलेंडर ने इतना प्रेशर अप्लाई किया, अगर हम इस सिलेंडर को बड़ा करें, अगर आप ये जो सिलेंडर आपने कंसीडर किया था जिसके जरिए आपने प्रेशर फाइंड किया, इफ वी इंक्रीज द साइज ऑफ द सिलेंडर, तो क्या ये प्रेशर बढ़ेगा? आप बताइए क्या प्रेशर बढ़ेगा? नो, द प्रेशर विल रिमेन सेम। व्हाई? यू कैन सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला दैट प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। क्या इस टर्म में इस फॉर्मूले में कहीं एरिया का टर्म है? देयर इज नो एरिया टर्म इन दिस, एरिया है ही नहीं। दैट मीन्स प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। बात समझ आ गई अच्छे से? अगर ये सिलेंडर इतना बड़ा, क्या इससे भी बड़ा कर दो, पूरे जो वेसल है उसकी साइज का कर दो, फिर भी प्रेशर में फर्क नहीं आएगा, बिकॉज प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ, अगर इस सिलेंडर की हमने हाइट बढ़ा दी, इफ आई इंक्रीज द हाइट, आई गो मोर बियॉन्ड, देन प्रेशर ऑब्वियसली विल इंक्रीज, बिकॉज प्रेशर डिपेंड्स अपॉन हाइट। हाइट पे प्रेशर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता। याद रखना, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपको बहुत घुमाया जा सकता है, आपको तरह तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं इस पे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। नाउ दिस इक्वेशन P इज इक्वल टू एच रो जी, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर लिक्विड एंड ऑल्सो गैस। गैस के लिए भी वैलिड है, ठीक है। गैसेस के लिए भी हम लोग कभी कभी ये इक्वेशन यूज करेंगे, P इज इक्वल टू रो एच जी, एंड इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर लिक्विड। लिक्विड के लिए एनालिसिस हमने अभी किया। द सेकेंड थिंग इज दिस इक्वेशन शोज दैट, मैं यहां पे लिखता हूं, दिस इक्वेशन शोज दैट प्रेशर ओनली डिपेंड्स अपॉन the height of the liquid column. It only depends upon height of the liquid column. तो एक बात हमें ये पता चली कि this pressure is valid for liquid and gas. Also, this pressure only depends upon height of the liquid column. So I hope the concept is very much clear. Pause your screen, copy this all, and we move further with another topic. आपको इसमें करना क्या है, हेडिंग डालेंगे प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी बना हुआ है, वहां से भी बनाओ या यहां से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बस मैंने उसको और ज्यादा इलेबोरेट किया हुआ है। देन विल बी यूजिंग फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स इज नथिंग बट वेट, वेट इज mg and divide by area. M is density into volume by this formula, and we put these values. Also volume is area into height by this formula. ये सब साइड में लिखते रहेंगे आप, बेसिक पार्ट बाय बेसिक चीजें. Then area and area gets cancelled and what you get is P is equal to rho hg. This equation shows pressure exerted by liquid column on this surface which is there beyond the cylinder, and this equation is also valid for liquid. It is also valid for gas. The equation clearly shows that pressure does not depend upon this area. Cross sectional area of cylinder पे pressure depend नहीं करेगा. It will be only depending upon the height of the liquid column which is there above. Okay.
Just copy this. Now we are going to learn about the atmospheric pressure. ये टर्म आपने कई मरतबा सुना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, सी हेडिंग डालेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब ये समझते हैं कि एग्जैक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है. ये आगे भी आएगा, हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी आपको ये टर्म मिलेगा. इनफैक्ट इन केमिस्ट्री यू विल बी गेटिंग दिस इन सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम समझते हैं. सी वी आर लिविंग एट द अर्थ एंड यू नो द अर्थ इज सराउंडेड बाय द कंप्लीट एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में हमारे एयर है, गैसेस है, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस और एयर है, डस्ट पार्टिकल्स है. ऑल दिस थिंग्स मेक अर्थ्स एटमॉस्फेयर. अब होता क्या है, हमारे अर्थ की सरफेस से लेकर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती रहती है. सबसे नीचे अर्थ की सरफेस पे द एटमॉस्फेयर इज मोर डेंसर. when you move upward the density of atmosphere decreases. Suppose for example this is our earth, this is main earth and this is surrounded by the atmosphere. अभी एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, गैसेस है और क्या है, डस्ट पार्टिकल्स है. तो बिकॉज ऑफ दिस होता क्या है, whenever you are standing on the surface of the earth then this atmosphere which is there above you it is applying a downward force on you. ये जो सरफेस आपके ऊपर है ये आप पर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता है. ये फोर्स क्यों अप्लाई करता है, बिकॉज इट इज बाउंडेड टू द अर्थ विद ग्रेविटी. बिकॉज ऑफ ग्रेविटी it is applying force on you and because of that force exerted on you you are feeling a pressure and that pressure is known as atmospheric pressure. ये जो फोर्स आप पे लग रहा है, द प्रेशर हम यहां पे लिख सकते हैं, द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर is called as atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Atmospheric pressure कितना होता है, atmospheric pressure is approximately 760 mm of Hg. 760 mm of Hg. This is the atmospheric pressure. किसी भी सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगता है, 760 mm of Hg. और यू कैन राइट इट एज 101.3 किलो पास्कल. बोथ आर द यूनिट्स ऑफ द सेम थिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.3 किलो पास्कल. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन यू. नाउ एक और टर्म आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ सुनने मिलेगा एंड दैट इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, समटाइम्स वी से इट एज नॉर्मल प्रेशर एंड समटाइम्स वी से इट एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब ये क्या होता है, सुनो यहां पे, the atmospheric pressure at the surface of the sea level. Atmospheric pressure at sea level, at the surface of the sea is called as normal atmospheric pressure.
इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता है? जब हम लोग सरफेस ऑफ द अर्थ पे है तो वी आर सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर, दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन अर्थ। और ये एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर फोर्स क्यों एक्सर्ट कर रहा है? बिकॉज इट इज पुल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वी आर एक्टेड अपॉन बाय द प्रेशर, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन वी लर्न नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पे जितना प्रेशर होता है एट द सरफेस ऑफ द सी इज कॉल्ड एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? अच्छा, आपको दो टर्म और मिलेंगे प्रेशर के रिलेटेड, एंड दैट इज गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। ये सारे के सारे टर्म्स प्लीज याद रखना, नोट्स बनाते जाना। नोट्स बनाओगे तो आपको रिफर करने में इजी होगा और गो थ्रू कर सकोगे। नोट्स नहीं बनाओगे तो लेक्चर अभी देखोगे और बाद में भूल जाओगे फौरन ही। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। अब ये प्रेशर क्या होता है ये हमको समझना है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस मेक द डायग्राम अगेन विल बी कंसिडरिंग अ वेसल। यहां पे हमारे पास एक वेसल है और उस पर्टिकुलर वेसल के अंदर हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है कि इट इज फिल्ड विथ अ लिक्विड like this, and this is the free surface. Above free surface there is air, below free surface there is water, and again we are considering a cylindrical liquid column over here. There is a cylindrical liquid column, and below which again there is a water surface. ठीक है, डायग्राम क्लियर है। एक वेसल में हमने कंसिडर किया कि लिक्विड इज कंटेन्ड इनसाइड द वेसल। दिस इज द फ्री सरफेस। अबव द फ्री सरफेस वी आर हैविंग एयर, बिलो द फ्री सरफेस वी आर हैविंग वाटर, एंड हियर आई हैव कंसिडर्ड लिक्विड कॉलम। नाउ व्हाट हैपेंस, सी देयर इज सम वाटर अबव दिस cylindrical liquid column. That water is going to apply force on it. यहाँ पे ऊपर जो वाटर है, that water is going to apply the force on this cylinder F1. Let's say the force applied by this surface on the liquid column is F1. Now this surface which is there below this cylindrical part will be applying F2 on it. अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं बोलना क्या चाहता हूं। इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वी आर स्टडिंग हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब आर लिक्विड इज इन रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे है मतलब ये जो हमारा सिलेंडर है इस पे हर तरफ से लगने वाला फोर्स इक्वल है। ठीक है, अब इस सिलेंडर के ऊपर जो पानी है, जो लिक्विड है, वो इस सिलेंडर पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। याद रखना ये सिलेंडर इमेजिनरी है, हमने कंसिडर किया है जस्ट। तो ऊपर वाला पानी इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है F1, और जो नीचे पानी है वो इस पर F2 नीचे से अप्लाई करेगा। क्यों? टू बैलेंस दिस। अगर ये नीचे से फोर्स अप्लाई नहीं करेगा और ऊपर से फोर्स लगता रहेगा, सो दिस पार्ट ऑफ द वाटर विल गेट डाउन एंड डाउन, बट द फ्लूइड इज एट रेस्ट, दैट मीन्स फोर्सेस आर बैलेंस्ड। द अपर फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स F2 विच इज इन अपोजिट टू F1। इतना समझ गए? अच्छा, और कोई फोर्स लग रहा है इस सिलेंडर पे? और कोई फोर्स लग रहा है? यस, द वेट ऑफ दिस सिलेंडर विच इज नथिंग बट mg एक्टिंग डाउनवर्ड। वेट mg इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब हम लोग यहां पे इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। The fluid is at rest, therefore अगर ये रेस्ट पे है मतलब जितने नीचे वाले फोर्स है उसने ऊपर वाले फोर्सेस को बैलेंस करा है। नीचे कौन कौन से फोर्स है? नीचे फोर्स है हमारा F1 वेक्टर है, वो फोर्स वेक्टर होगा, वेक्टर प्लस दिस mg इज डाउनवर्ड डायरेक्शन,
these two forces which are in downward direction, they are balanced by F2 which is in upward direction, F2 bar. Now as you know that pressure is equal to force upon area, and therefore this force F will be equal to pressure into area. Correct na? Pressure is force upon area, therefore force is pressure into area. Now I can write over here pressure into area. Can I write? Yes. So in place of F1 I will be writing pressure into area, but यहां पे मैं लिखूंगा P1 प्रेशर एट फर्स्ट सरफेस. अच्छा, एरिया के साथ 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है. व्हाई? बिकॉज द एरिया हियर एंड एरिया हियर आर सेम. ठीक है, तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस mg और F2 की जगह क्या लिखेंगे? प्रेशर P2 इंटू एरिया. और यहां पे रीजन लिख देंगे ये वाला कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया एंड फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया. ऑल्सो you mention this reason that area A1 and area A2 is same as area A. Both areas are same. समझ गए आप? Okay. Now this mass can be written as density into volume. हमने अब भी देखा था mass is equal to density into volume. तो हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, प्रेशर P1 इंटू एरिया प्लस मास की जगह मैं लिख रहा हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी विल बी इक्वल टू P2 इंटू ए. यहाँ पे भी अगेन आप रीजन लिखेंगे. किस चीज़ का रीजन लिखेंगे? इसका. मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ये जो मास है इसकी जगह मैंने लिखा है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. कंफ्यूज मत होइएगा. ओके. नाउ दिस P1 इंटू ए प्लस रो एज इट इज. वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? हमने अब भी लिखा था एरिया इंटू हाइट. सो वी कैन राइट एरिया इंटू हाइट इंटू जी एज इट इज कॉपी एंड P2 इंटू ए एज इट इज कॉपी. अगेन यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे. क्या रीजन लिखेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट. समझ में आ रहा है? ओके. नाउ यू कैन सी एरिया हियर एंड एरिया हियर कैंसिल हो सकता है. दिस एरिया कैंसिल. क्या बचा हमारे पास? यहां पे हमारे पास बचा नीचे P1 प्लस यहां बचा रो एच जी और यहां हमारे पास बचा क्या? P2. सही है. इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिखता हूं अगेन थोड़ा सा अच्छे से. आई कैन राइट P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो एच जी. P2 is equal to P1 plus rho hg. Correct? What is P2 guys? See, this is the surface number 2. Confuse मत होना. This is the surface number 2 and this is the surface number 1. The pressure here is P2 and the pressure here is P1. So equation ध्यान से देखो. P2 is equal to P1 plus rho hg. Pressure at this surface is equal to pressure at this surface plus rho hg, where rho is what? Density of the fluid. H is what? H is nothing but height of this liquid column. H is equal to height of this liquid column. क्या आपको बात समझ में आ गई? बट स्टूडेंट सी हियर, इतना तो आपने समझ लिया, वेरी गुड. इसको हम लोग दे देते इक्वेशन नंबर 1. Just look what I am going to write over there. मैं इस वेसल को यहां पे फिर से ड्रॉ करने जा रहा हूं और अब की बार हम लोगों ने ये जो इमेजिनरी सिलेंडर था जिसको हमने थोड़ा नीचे कंसीडर किया था, लेट अस मूव दिस सिलेंडर टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड. मैं इस सिलेंडर को यहां पे लेके आ जाता हूं. अब ये सिलेंडर यहां पे आ गया है. ठीक है. और इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो एज इट इज नीचे है. ऐसा करने की जरूरत क्यों थी? देखो यहां पे ध्यान से देखना. और यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो h है. स्टूडेंट्स, अगर ये सिलेंडर सरफेस पे आ गया है तो कैन वी से द प्रेशर ऑन द अपर पार्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
द प्रेशर ऑन द अपर पार्ट इज व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एटमॉस्फेयर। ऊपर हमारा क्या है, एयर, और नीचे हमारा क्या है, वाटर। तो यहां इस सरफेस पे जो प्रेशर आएगा दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं P0 से, P नॉट, वी से इट एज P नॉट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, P नॉट। और हमें यह फाइंड करना है कि यहां पे जो ये जो बिलो सरफेस है, नीचे वाली, यहां पे जो प्रेशर है वो कितना है, वो हमको फाइंड करना है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं P ओनली। हमने कुछ नहीं किया, इस सिलेंडर को ऊपर शिफ्ट किया, ऊपर शिफ्ट किए तो ये सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आने की वजह से यहां जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और नीचे जो प्रेशर है उसको हमने नाम दिया P प्रेशर, करेक्ट ना। नाउ अगेन राइट दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा वो देखिए। इक्वेशन बोलती है कि P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो एच जी, करेक्ट। बट नाउ P2 हैज बिकम P, द P2 हैज बिकम P ओनली, एंड P1 has become P0, P naught, so we can write over here P naught plus rho hg. So this is our new equation, P is equal to P0 plus rho hg. अब आप बोलेंगे सर ये इक्वेशन लिखने की जरूरत क्यों पड़ी है सर? सुनिए, यहाँ पे इसलिए जरूरत पड़ी कि इन दिस इक्वेशन हमारा टॉपिक क्या था, वी आर गोइंग टू स्टडी एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, करेक्ट ना। इन दिस इक्वेशन दिस टर्म P is called as absolute pressure. इस प्रेशर को क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट प्रेशर। और इसी एब्सोल्यूट प्रेशर का एक और नाम है टोटल प्रेशर। इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर और टोटल प्रेशर। क्या आप बात समझ रहे हो? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, इस इक्वेशन को मैं यहां फिर से लिख रहा हूं लेकिन मॉडिफाई करके। कैसे? क्या P0 को यहां लेके आ सकते हैं इक्वल टू के इस तरफ? अगर मैं P0 को यहां लाऊं तो ये बन जाएगा P माइनस P0, करेक्ट ना। इट विल बिकम P माइनस P0 एंड दैट विल बी इक्वल टू रो एच जी। P माइनस P0 इज इक्वल टू रो एच जी। ये इक्वेशन सेम मैंने लिखा लेकिन अलग फॉर्म में लिखा। ऐसा क्यों लिखा? वाई? Because this P minus P0 is equal to rho hg is called as gauge pressure. ऐसा लिखो आप, P minus P0 which is equal to rho hg and it is nothing but gauge pressure. इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? गेज प्रेशर। याद रहेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर या टोटल प्रेशर किसे कहा हमने? P को। P इज इक्वल टू P0 प्लस रो एच जी। और P माइनस P0 जब करेंगे दैट मीन्स वेन एवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एब्सोल्यूट प्रेशर इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर विच इज इक्वल टू रो एच जी। वेन एवर यू सब्ट्रैक्ट द एब्सोल्यूट प्रेशर, वेन एवर यू सब्ट्रैक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम एब्सोल्यूट प्रेशर, the pressure which you get is called as gauge pressure. क्या आपको बात क्लियर है? एकदम पक्का, इसमें कोई डाउट है? तो देखो, सबसे पहले हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा। एटमॉस्फेयर हमारा जो होता है वो एटमॉस्फेयर हम पर फोर्स अप्लाई करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वी आर एक्टेड अपॉन बाय अ प्रेशर एंड कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद हमने देखा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है द प्रेशर एट द लिक्विड, द प्रेशर एट द सी लेवल इज कॉल्ड एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन वी लर्न अबाउट एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट मीन्स द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड कॉलम ड्यू टू एटमॉस्फेयर एंड ड्यू टू लिक्विड कॉलम बोथ। सुनो यहाँ पे, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अरे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला अभी पीछे पड़े ना, रो एच जी। Pressure applied by liquid column is rho hg, we learned just now before this derivation. So absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus pressure by liquid column. And what is gauge pressure? Absolute pressure minus atmospheric pressure gives you gauge pressure. आई होप ये सारे प्रेशर आपको क्लियर है। अच्छा, एक बात और मैं मेंशन कर दूं अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में एक पिक्चर आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हेनेवर यू गो अबव
whenever you go above the atmosphere, then the density of atmosphere reduces. एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाती है, एंड फाइनली आफ्टर 8 किलोमीटर द डेंसिटी बिकम्स नेग्लिजिबल. तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर कम होता रहेगा. ये बात क्लियर है? एज यू मूव अपवर्ड द प्रेशर विल गो ऑन रिड्यूसिंग. तो कितना ऊपर जाने से कितना प्रेशर कम होगा, दैट वी कैन कैलकुलेट by using this equation only, and this is our next topic, the pressure due to atmosphere at certain height h. So just now what you do is pause your screen, copy these all, and we move further. Okay guys, सो कॉपी कर लिया आप लोगों ने. चलो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. द चेंज इन प्रेशर ड्यू टू चेंज इन हाइट. या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे? change in pressure with change in height from the earth's surface. ठीक है, ओके. मैं ये डायग्राम रब करके यहाँ पे एक नया डायग्राम बना रहा हूँ. इक्वेशंस तो आपके सामने है. अब हमें क्या करना है? अगेन लेट अस कंसिडर अ वेसल लाइक दिस. इट इज क्लोज्ड फ्रॉम हियर एंड वी आर कंसिडरिंग दैट द लिक्विड इज फिल्ड इनसाइड. ओके, now again we are going to consider a liquid column, but now we will be considering column above. अगर आपको ये वाला डायग्राम याद होगा तो हम लोगों ने यहाँ पे जो कॉलम बनाया था that was below inside the liquid surface, correct ना? But now we are making the column above. Why? Because now we want to find change in pressure with change in height from the earth surface. अर्थ सरफेस के आप जितना ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना कम होता जाएगा वो हमें फाइंड करना है. एंड दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग द लिक्विड कॉलम अबव. ये बात दिमाग में रखना, एयर भी फ्लूइड है. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्लूइड्स ना, तो एयर भी फ्लूइड है. ओके, हमने अब भी देखा था कि यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया पे जो प्रेशर है, यहां पे प्रेशर हमारा है P0 जिसको हम P0 कहते हैं, और उस पर्टिकुलर हाइट ऊपर पे, यहां ऊपर जो प्रेशर है वो क्या है? P है, करेक्ट ना? मान लेते हैं यहां ऊपर प्रेशर P है और नीचे प्रेशर P0 है. आई एम गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन अगेन. मैं ये इक्वेशन को फिर से लिखने जा रहा हूं, बट अगर आपको याद होगा इस इक्वेशन से पहले मैंने यहां जो इक्वेशन लिखा था, वो इक्वेशन क्या लिखा था मैंने? वो इक्वेशन इस तरह से थी, द प्रेशर बिलो इज इक्वल टू द प्रेशर अबव प्लस एच रो जी. सुनो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं. इस इक्वेशन को हमने इस तरह से लिखा था, द प्रेशर P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो एच जी. हमने ऐसे ही लिखा था. ये हमारा लिक्विड कॉलम होता था ऐसे, और नीचे होता था प्रेशर P2, ऊपर प्रेशर P1 और यहाँ पे हाइट h. सो P2 यूज्ड टू बी इक्वल टू P1 प्लस रो एच जी, करेक्ट ना? यूजिंग सेम इक्वेशन बट अप्लाइंग ऑन दिस. अब बताइए नीचे प्रेशर कौन सा है? नीचे हमारे पास प्रेशर है P0, तो आई कैन राइट P0 वही है. P0 नीचे वाला प्रेशर इज इक्वल टू ऊपर वाला प्रेशर P प्लस लेट्स से दिस हाइट इज h above the liquid surface, so this will be h rho g. नीचे वाला प्रेशर इज इक्वल टू ऊपर वाला प्रेशर प्लस रो एच जी. नीचे वाला प्रेशर इज इक्वल टू ऊपर वाला प्रेशर प्लस रो एच जी. बट हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है प्रेशर एट दिस हाइट h
we want to find pressure at this height h. So let us say pressure at this height h, हमें तो वही फाइंड करना है ना. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन ये जो रो एच जी है इसको यहाँ पे लेके आ जाओ तो ये बन जाएगा P0 माइनस रो एच जी इज इक्वल टू प्रेशर एट सम हाइट h. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड प्रेशर एट सर्टन हाइट h अबाउ द अर्थ सरफेस. आपको क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो वैल्यू यहाँ पुट करो और जिस हाइट पे आप गए हो वो हाइट का वैल्यू यहाँ पुट करो. अच्छा, अब बात आएगी डेंसिटी की. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मुझे समझाना है. द टर्म्स कम अबाउट डेंसिटी. सी, डेंसिटी एटमॉस्फेयर की जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे कम होती रहेगी, ये बात आप जानते हो. बट बिलो 8 किलोमीटर, सी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ to the height of 8 kilometer, to the height of 8 kilometer, we assume that density is constant. Up to the height of 8 kilometer, we assume that density is constant. And after 8 kilometer, we assume density is negligible. The density of atmosphere is negligible. So the only atmosphere which is applying force on you is this atmosphere up to the height of 8 kilometer. क्योंकि 8 किलोमीटर तक उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो आप पे फोर्स अप्लाई करता है. जैसे ही 8 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तो डेंसिटी कम हो जाती है उसकी और वो इतनी नेग्लेक्ट हो जाती है कि अब उसका फोर्स अप्लाई करना ना करना सब बराबर है. सो वी अज्यूम दिस. ये एक पॉइंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया. ऑन एंड इफ यू वांट टू फाइंड द प्रेशर एट सम हाइट h, क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है P0 माइनस रो एच जी और यहाँ पे टर्म्स आप मेंशन करेंगे. दिस PH इज व्हाट, प्रेशर एट सम हाइट h. दिस P0 इज व्हाट, pressure at the liquid surface, sorry atmospheric pressure. Rho is what, density of atmosphere. H is what, height जहाँ पे आप गए हो. G is what, acceleration due to gravity which is 9.81 meter per second square. That is also we assume as constant up to some kilometers. ठीक है, ज़्यादा ऊपर जाओगे तो आप जानते हो G भी चेंज होता है. ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे वो, अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करते. सी, तो यू हैव टू अप्लाई दिस सिंपल फॉर्मूला. टर्म्स आपको पता होने चाहिए. समझ आ गई ये बात अच्छे से? पक्का? पॉज करो स्क्रीन को और कॉपी करो ये. ओके गाइस, लेट्स मूव फर्दर एंड let me ask a question to you. एक गेम खेलते हैं, ठीक है? मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है. अपना कॉमन सेंस, अपना लॉजिक अप्लाई करना है. अभी तक आपने प्रेशर के बारे में जितना पढ़ा वो आपको दिमाग में रखना है और आपको मुझे उसका आंसर देना है जो मैं पूछने जा रहा हूँ. बाय द वे आपके टेक्स्ट बुक का पार्ट है और इसको हम लोग कहते हैं, वी से इट एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. पैराडॉक्स का मतलब जानते हो आप? पैराडॉक्स मतलब कॉन्ट्रडिक्शन. हाइड्रोस्टैटिक मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट. तो फ्लूइड जब रेस्ट पे होता है तो वहां पे हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है छोटा सा. क्या कॉन्ट्रडिक्शन, जरा देखिए यहाँ पे. मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, सुनो. मान लेते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी टाकी है. अ बिग टैंक इज देयर एंड दिस टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर. द वाटर इज देयर इनसाइड. हमने क्या किया, यहां से एक होल करके एक छोटा सा पाइप निकाला. एकदम नीचे हमने होल किया और एक छोटा सा पाइप निकाल के इस पाइप को हमने एक स्ट्रॉ जो आती है ना, जिससे आप सक करते हो पेप्सी वगैरह, उससे हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया. और वो स्ट्रॉ बहुत लंबी है, हाइट ऑफ द टैंक के जितनी स्ट्रॉ, एक लंबी स्ट्रॉ है, बहुत पतली सी है और इसके अंदर पानी नहीं है.
या मान लो इसके अंदर भी हमने, ऑब्वियसली जब आप यहाँ से पाइपलाइन जोड़ोगे तो पानी यहाँ से इधर अंदर एंटर करेगा ऐसे, और यहाँ तक भर जाएगा वो भी आके। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा पानी का मास है, देयर इज कंप्लीट वेट ऑफ द वाटर अबव। तो ये जो पानी है क्या वो नीचे प्रेशर अप्लाई करेगा? ऑब्वियसली रो एच जी प्रेशर अप्लाई करेगा, और वो जो प्रेशर अप्लाई करेगा तो प्रेशर से पानी यहाँ जाएगा इस स्ट्रॉ के अंदर, करेक्ट ना? स्ट्रॉ के अंदर पानी जाने के बाद अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्ट्रॉ यहाँ से ओवरफ्लो होगा? हमने स्ट्रॉ को नीचे से बंद करके रखा हुआ है, नीचे से यहाँ पैक है, नीचे से पानी गिर नहीं सकता। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये पानी यहाँ नीचे प्रेशर अप्लाई करेगा, और प्रेशर अप्लाई करने की वजह से पानी यहाँ आएगा, तो यहाँ आने के बाद क्या यहाँ से वाटर ओवरफ्लो होगा या नहीं होगा? ओवरफ्लो, इज ओवरफ्लो पॉसिबल और नॉट? पॉज द स्क्रीन, थिंक अबाउट इट। मैं आंसर दूंगा, सोचिए, सोचो, सोच लिए? आ गया आंसर? ओके, नाउ सी हियर, देखो द आंसर इज ओवरफ्लो नहीं होगा, ये पानी यहीं पर आकर रुक जाएगा। क्यों ऐसा? अब बात सुनना ध्यान से बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे प्रेशर कितना है, तो आप बोलेंगे प्रेशर हियर इज P इज इक्वल टू रो एच जी। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर ना करें तो P इज इक्वल टू रो एच जी। अच्छा, यहां प्रेशर कितना? यहां भी प्रेशर है P इज इक्वल टू रो एच जी। हाइट, अच्छा प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी, हाइट इनटू ग्रेविटी। डेंसिटी दोनों पानी की सेम है, सेम वाटर है, दोनों पानी के लिए वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। अच्छा, दोनों सेम हाइट पे सेम लेवल पे है, तो अगर दोनों का प्रेशर रो एच जी है, मीन्स देयर इज इक्विलिब्रियम इन प्रेशर। और अगर प्रेशर दोनों जगह सेम है, दैट मीन्स वाटर विल नॉट ओवरफ्लो फ्रॉम हियर, इट विल बी एट दिस हाइट ओनली। अब जरा रिकॉल करिए, मैं जब लिक्विड कॉलम पढ़ा रहा था उस टाइम में मैंने आपको बहुत जोर देकर यह बात बताया था कि दिस प्रेशर विल नॉट डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर। वो जो इमेजिनरी सिलेंडर हमने कंसिडर किया था उसके एरिया पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर तो हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे इसका एरिया देखो कितना बड़ा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका एरिया देखो कितना छोटा है, प्रेशर उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं। प्रेशर तो हाइट पे डिपेंड करेगा कि ऊपर हाइट कितनी है। क्या आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई? पक्का? कोई डाउट है इसके अंदर? इसी का नाम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब ऐसा दिखता है हमको, कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसा दिखता है कि यहाँ ओवरफ्लो होगा लेकिन ओवरफ्लो होता नहीं है। इसी को समझाने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक और एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो यहाँ पे, लिसन। देयर इज अ वेसल लाइक दिस, there is another vessel like this, there is another vessel like this, and there is a vessel like this. इन सारे के सारे वेसल पे हमने सेम हाइट तक, रिमेंबर सेम हाइट तक वाटर फिल किया है। यहाँ पे हमने वाटर फिल किया यहाँ तक, यहाँ पे भी हमने वाटर फिल किया यहाँ पर, और इधर पे हमने इसके अंदर वाटर फिल किया इस हाइट तक, और यहाँ भी हमने वाटर फिल किया है इस पर्टिकुलर हाइट तक। आप मुझे बताइए, स्क्रीन को पॉज करके मुझे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। आप मुझे बताएंगे कि इन चारों में, लेट अस नंबर दिस 1, दिस एज 2, दिस एज 3, दिस एज 4, इन चारों में बेस पे सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से वेसल में आएगा? आर यू एबल टू सी? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बेस है इनका, दिस इज फर्स्ट बेस, दिस इज द बेस ऑफ सेकंड वेसल, दिस इज द बेस ऑफ थर्ड वेसल, दिस इज बेस ऑफ फोर्थ वेसल। इन चारों में बेस पर सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से केस में आएगा? केस नंबर 1 में या 2 में या 3 में या 4 में? सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से केस में आएगा? सोचो, सोच लिए? चलो अब यहां पे सुनो, इसका आंसर भी वही है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड
at this basis are all same, there is no change in pressure. अब यहाँ आप देख सकते हो कि सर ये वाला जो वेसल है इसमें हमने जो पानी भरा है ये तो इतनी सी हाइट तक भरा है h तक, तो ऑब्वियसली इसके अंदर पानी कम है, द वाटर इज लेस इनसाइड. यहाँ पे पानी थोड़ा और ज़्यादा है, यहाँ पे पानी थोड़ा और ज़्यादा है, और यहाँ पे पानी हो सकता है थोड़ा सा और कम है, बट कंपेरेटिव टू फर्स्ट टू वाटर हियर इज मोर. अब जब पानी का क्वांटिटी इन वेसल्स में ज़्यादा है तो लॉजिकली होना ये चाहिए कि इनके बेस पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होना चाहिए. लॉजिकली होना तो ऐसा चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है. प्रेशर सारे के सारे बेसिस पे इक्वल होता है. यह हमें दिखता है कि ज़्यादा होगा, लेकिन ये होता नहीं है, प्रेशर सेम होता है, और इसी को पैराडॉक्स कहते हैं. जो दिखता है वो होता नहीं है. वैसे तो अगर देखा जाए फिजिक्स में ऐसा कुछ होता नहीं है पैराडॉक्स जैसा, वी ऑलवेज टॉक लॉजिकल. चलो मैं आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में लॉजिक समझाता हूँ होता क्या है. सुनो यहाँ पे, ये आपके समझने के लिए, बाकी सब एग्जाम्पल छोड़ो, इसी को समझते हैं और आपको पता लग जाएगा. दिस इज नॉट द पैराडॉक्स बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज प्योरली लॉजिकल थिंग. सुनो, ये जो वॉल है इसकी, ये वॉल क्या कर रही है? दिस वॉल्स आर अप्लाइंग नॉर्मल फोर्स लाइक दिस. यहां से भी ये वॉल नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगी, नॉर्मल रिएक्शन जिसे कहते हैं. अगर मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को दो पार्ट में रिजॉल्व करूं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, मान लो ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, और ये वाला हो जाएगा साइन कंपोनेंट. मान लो ये नॉर्मल फोर्स F लगा रहा है तो ये हो जाएगा F cos थीटा और ये हो जाएगा F sin थीटा. तो अब देखो ये जो F cos थीटा है इसको सामने वाला F cos थीटा बैलेंस कर लेगा, ठीक है. लेकिन ये जो वर्टिकल फोर्स है F sin थीटा, ये वर्टिकल फोर्स यहाँ से भी आएगा, ये यहाँ से भी आएगा, ये यहाँ से भी आएगा. इट विल कम फ्रॉम दिस, कम फ्रॉम दिस, कम फ्रॉम दिस, एंड इट विल बी देयर ऑन ऑल अलोंग द पेरिफेरी. करेक्ट ना? तो ये जो पानी का जो एक्स्ट्रा वेट mg है, दैट एक्स्ट्रा वेट mg इज बैलेंस्ड बाय वर्टिकल फोर्स F sin थीटा all along the periphery. Since the vertical weight mg is balanced by F sin theta, that is why the pressure at the surface will be less. And in this case where we are considering straight vessel ले लो, तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए तो कुछ है नहीं, ये इंक्लाइंड है इसीलिए वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है. यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं, तो यहाँ पूरा का पूरा जो पानी का वेट है इट इज गोइंग टू अप्लाई द फोर्स ऑन दिस, वाइल हियर कंप्लीट वेट इज नॉट एबल टू अप्लाई द फोर्स बिकॉज दिस वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल दिस. समझ में आया? तो पैराडॉक्स तो इसलिए कहते हैं कि दिखता है, वरना पैराडॉक्स है नहीं, प्योरली लॉजिकल है. और वैसे ही पूरा फिजिक्स प्योरली लॉजिकल है, कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग इंशाल्लाह पूरा साल पूरा लॉजिकल पढ़ेंगे, ठीक है. तो चलो एक बार फिर से फास्ट समराइज कर लेते हैं हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसके क्लासिफिकेशन से. फ्लूइड मैकेनिक्स के दो पार्ट है, एक तो फ्लूइड एट रेस्ट में स्टडी करेंगे और एक फ्लूइड मोशन में स्टडी करेंगे. रेस्ट वाले को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, मोशन वाले को कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स. फिर रेस्ट में हमने स्टार्ट किया प्रेशर की कहानी से. प्रेशर किसे कहते हैं? लिक्विड नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता है वॉल ऑफ द कंटेनर पे, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया. इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, बार, टॉर, mm, hg एक्सेट्रा. बहुत सारे यूनिट्स है, हमें ऐसा यूनिट याद रखना है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. उसके बाद हम लोगों ने देखा द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, हमने फॉर्मूला डिराइव किया P इज इक्वल टू H rho g. हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कोई चीज़ होती है, हमारा एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर लगाता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सी लेवल पे जो प्रेशर आता है उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर. गेज प्रेशर कहता है कि P माइनस P0, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और एब्सोल्यूट प्रेशर किसे कहेंगे? द टोटल प्रेशर मीन्स प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर और टोटल प्रेशर. यहां तक कहानी हमारी क्लियर हो गई थी. उसके बाद हम लोगों ने देखा द प्रेशर वेरिएशन विथ सम हाइट. अगर आप हाइट पे जाओगे तो प्रेशर कितना कम होगा, तो उसकी इक्वेशन हमको मिली P इज इक्वल टू P0 माइनस रो Hg. फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए. उसके बाद हम लोगों ने देखा हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स.
कि अगर बहुत सारे कंटेनर ले लो अलग अलग शेप के, किसी में पानी ज़्यादा किसी में पानी कम, और अगर हमने सबको सेम हाइट पे भरा हुआ है तो उसके बेसिस पे प्रेशर भी सेम लगेगा, प्रेशर चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो दिख रहा कुछ और था, हो रहा कुछ और है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। लेकिन हमने लॉजिकली देखा कि पैराडॉक्स नाम की कोई चीज़ होती नहीं, ये बिल्कुल प्योर लॉजिकल फिजिकल रीज़न हमारे पास इसका मौजूद है। तो आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो अगर आप चाहते हैं समझना, उसको कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो वो भी आप कमेंट करके टॉपिक बता सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। तो लेक्चर आप पूरा देखिए और जाकर टेक्स्ट बुक में जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक पूरा पढ़ेंगे और जहाँ डाउट आएगा उसको मार्क करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बस। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक सेहतमंद रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना और घर वालों का ख्याल रखिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।